Welcome students. In the last video you learned how to read the contents of a text file character by character. And in this video I am going to continue with reading the contents of a text file word by word. So one word at a time will be read from the file and you will be performing some kind of operations with that with those words which are read from the file. So let us see how to read the contents of a file word by word and then use it in several operations. First question is, write a program to read the contents of a file story.txt and count the number of words present in it. Suppose you want to see how many words are there in a file. So for this you will have to read the contents of that file word by word. Okay. So what you can do is, first of all, since reading is required, so open the file in the read mode. Then what I have done, I have read all the data of the file in one go with the help of read function. ठीक है, तो read function हमारी फाइल का पूरा डेटा एक बार में रीड करके s में स्टोर कर देगा. उसके बाद हमने देखिए यहाँ पे क्या किया है. Here I have used, you know that s is a string and what split function does? Split function में अगर आपने कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया है तो ये ब्लैंक स्पेस के बेसिस पे स्ट्रिंग को स्प्लिट कर देता है और एक लिस्ट में रैप करके रिटर्न कर देता है. सो इन द वेरिएबल nw you will be having a list. Okay, a list will be there and the elements of this list will be words. ठीक है, words of this string s. Okay, so all these words will be stored in this list and name of this list will be nw. और फिर हमने क्या किया, नंबर ऑफ वर्ड्स निकालने के लिए इस लिस्ट की लेंथ निकाल दी, क्योंकि जितने वर्ड्स, जितने ब्लैंक स्पेसेस की हेल्प से वो हुआ, मतलब स्प्लिट हुआ, तो जितने वर्ड्स आए होंगे इस आपके nw में, लिस्ट में, उतने ही वर्ड्स आपके प्रेजेंट हैं. सो दिस इज द वे वी आर गोइंग टू solve this program. Let us see the output. See here, I have not only I have printed number of words, मैंने एक और काम किया है, मैंने nw को भी प्रिंट कराया. यहाँ पे देखिए nw को भी मैंने प्रिंट करा दिया ताकि आपको पता चले कि कौन कौन से वर्ड्स थे और nw में एक्चुअली क्या वैल्यू आई s को स्प्लिट करने पे. ठीक है, तो देखिए इसने कहा नंबर ऑफ वर्ड्स हमारे 21 हैं. ना यू कैन सी दिस वॉज द एक्चुअल फाइल. story.txt हमारी एक्चुअल फाइल थी. ठीक है, और इसके हमने वर्ड्स, इसने कहा 21 वर्ड्स हैं. लेट अस काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21. So see, 21 words are there and see what output you are getting and see what was there in nw. nw में 21 वर्ड्स हैं. ठीक है, सो दिस वेरीफाइज योर आंसर. दैट इज वाई आई प्रिंटेड द वैल्यू ऑफ nw ऑल्सो. लेट अस क्लीन दिस ऑल. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. राइट अ फंक्शन नेम्ड काउंट वर्ड्स to read the contents of a text file story.txt and count the number of words starting with t or ending with e in the file. मतलब आपके पास एक फाइल है story.txt जिसमें कुछ कंटेंट ऑलरेडी लिखा है और आपको उस फाइल के कंटेंट्स को रीड करना है और चेक करना है कि उसमें कितने वर्ड्स ऐसे हैं जो कि या तो टी से स्टार्ट हो रहे हों या ई से एंड हो रहे हों. ठीक है, सो see, the question is never going to tell you how, in what way you have to read the contents of the file. You will have to figure it out from the requirement of the question, that what kind of reading is required. Since now in this program, since we are concerned about the words, whether they are starting with t or not or whether they are ending with e or not, तो हमें इस फाइल की रीडिंग वर्ड बाय वर्ड करनी चाहिए. ठीक है, सो यू हैव ऑलरेडी सीन हाउ टू रीड द कंटेंट्स ऑफ अ फाइल वर्ड बाय वर्ड. लेकिन अब हमारे पास इसमें एक एडिशनल वर्क भी है कि हमें चेक करना है कि वो वर्ड टी या ई से, टी से स्टार्ट या ई से एंड होता है कि नहीं. सो
हमें ऐसे वर्ड्स को काउंट करना है जो कि टी से स्टार्ट होते हों या ई से एंड होते हों. सो फॉर दिस आई हैव मेड अ फंक्शन. ओके, यू कैन सी द फंक्शन इज देयर एंड आफ्टर दिस आई हैव ओपन द फाइल इन रीड मोड. सारा कंटेंट एक बार में रीड कर लिया और फिर उस स्ट्रिंग को स्प्लिट कर दिया. मैंने आपको बताया था ना, सबसे इजी तरीका यही होता है, रीड ऑल द कंटेंट एंड देन स्प्लिट इट विद द हेल्प ऑफ स्प्लिट फंक्शन. सारे वर्ड्स उस फाइल के आपको एक लिस्ट के फॉर्म में मिल जाएंगे एंड देन यू कैन प्रोसेस दैट लिस्ट एज पर योर रिक्वायरमेंट. तो हमने NW में फिर से वो पूरी लिस्ट हमें मिल गई है जिसमें वर्ड्स हैं इस फाइल के. एंड दिस देन आई एम डूइंग, मैंने एक काउंटर ले लिया क्योंकि मुझे काउंट करना था. फिर यहाँ पे मैंने क्या किया, NW का एक एक एलिमेंट x में स्टोर किया एंड आफ्टर दिस आई एम चेकिंग इफ x 0, स्टार्टिंग कैरेक्टर हमारा 0 इंडेक्स पे होगा और एंड कैरेक्टर मेरा लेंथ -1 पे होगा. ओके, सो दैट इज वाई इफ x 0 इज t. और क्यों लगाया, क्योंकि हमें कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो तो हमें ये काम करना है, काउंटिंग करनी है. तो अगर x 0 t है या फिर लास्ट कैरेक्टर दैट इज लेन x -1, लास्ट कैरेक्टर इसी इंडेक्स पे होता है, अगर वो e है तो हमें काउंटिंग करनी है. सो ये जो है, this loop will keep on running and counting will keep on happening. Now after you finish the loop, number of words starting with T or ending with E is printed, and then I have closed the file because nothing more has to be done. And then see, in the main program I have invoked this function. ठीक है, so let us see the output. See, this was the content of your file story.txt. और इसमें देखिए कितने वर्ड्स उसने कहा है, 6 वर्ड्स ऐसे हैं जो टी से स्टार्ट होते हैं या फिर ई से एंड होते हैं. लेट अस सी वंस विल बी काउंटेड एंडिंग विद ई, देन टाइम विल ऑल्सो बी काउंटेड. ये इसमें तो दोनों कंडीशन ट्रू हो रही है, टी से शुरू भी हो रहा है, ई से एंड भी हो रहा है. देयर विल ऑल्सो बी काउंटेड स्टार्टिंग विद टी एंडिंग विद ई. फिर देन ही विल बी काउंटेड ending with E. Then again this he will be counted and ending with E, and this 2 will also be counted starting with T. So how many words are there? 6. So see, you are getting the right output. Clear? Next question is, write a function named countDo that reads the contents of a file imagine.txt and counts the number of occurrences of the word do as an individual word in the file. मतलब एक फाइल का कंटेंट आपको फाइल दी है, फाइल नेम इज imagine.txt and you have to count how many times the word do has come into this file, and that do should not be a part of a word, it should be an individual word. जैसे कि does में भी do आता है लेकिन आपको उसे काउंट नहीं करना है, आपको done में भी do आता है लेकिन उसका do नहीं काउंट करना है. You have to count only those do's which are individual words. Okay, so let us see. I have made a function and then opened the file imagine.txt in read mode. उसके बाद सारा कंटेंट रीड कर लिया, स्प्लिट कर लिया. इतना प्रोसेस तो ऑलमोस्ट सेम रहता है एंड वी हैव टू डू काउंटिंग ऑल्सो. एंड सी व्हाट आई एम डूइंग, आई एम टेकिंग वन एलिमेंट ऑफ NW लिस्ट इन X. ठीक है, एक एक एलिमेंट, क्योंकि NW क्या है, लिस्ट है और उस लिस्ट में सारे वर्ड्स हैं आपके फाइल के imagine.txt के, और फिर एक एक एलिमेंट आपका उस लिस्ट का X में आएगा और हम उसको चेक कर लेंगे कि वो डू है कि नहीं. अगर डू है तो काउंटिंग बढ़ेगी वरना नहीं बढ़ेगी. ठीक है, जब आप इस लूप के बाहर आएंगे यू कैन प्रिंट द नंबर ऑफ अकरेंसेज इज C एंड देन यू कैन क्लोज द फाइल बिकॉज नो मोर वर्क हैज़ टू बी डन. एंड देन you at the end means, or you can say in the main program, you have invoked the function to get its work done. Let us see what happened. See, this was the content of imagine.txt. ठीक है, these many lines were there और ये पूरा डेटा मेरा S में स्टोर हो गया था. S में स्टोर होके वो स्प्लिट हो गया, NW में लिस्ट आ गई इस सारे वर्ड्स की. फिर मैंने एक एक वर्ड रिसीव किया था और उसको मैंने काउंट किया था. तो अब देखिए कौन कौन से काउंट हुए. 4 कह रहा है ना. सी दिस डू विल बी काउंटेड, दिस डू विल बी काउंटेड, देन दिस डू विल ऑल्सो बी काउंटेड. ये वाला डू काउंट होगा लेकिन ये नहीं काउंट होगा. क्यों? क्योंकि ये इस वर्ड में DO के बाद क्वेश्चन मार्क भी साथ में है. अगर ये क्वेश्चन मार्क स्पेस के बाद होता है जैसे कि यहाँ पे है
तो इसको हम काउंट कर लेते, लेकिन ये एक पूरा वर्ड हुआ जिसमें 3 कैरेक्टर हैं, तो हमें ऐसे डू को तो काउंट करना नहीं है। फिर ये डज भी काउंट नहीं हुआ, डन का भी डू काउंट नहीं हुआ, ठीक है, बिकॉज माई क्वेश्चन सेड दैट वी हैव टू count the do's which are as individual word. Okay, so that is why you are getting the count as 4. The next question, write a function named showPalin that reads the contents of a text file document.txt and returns the number of palindromic words present in the file. Now children, you already know how to check that a word is a palindrome word. Okay, so what happens, if the word and its reverse is exactly same, then it is a palindromic word, right? So showPalin is the function which is going to read the contents of this file and check the number of palindromic words. तो इसमें क्या करना होगा, simply read all the content, then split it, then you get a list of words and then check individual word is palindromic word or not. If it is, increase the counting. If it is not, don't increase the counting. See, that has been done here also. सबसे पहले फाइल को रीडिंग मोड में को ओपन किया, पूरा कंटेंट रीड कर लिया, स्प्लिट कर लिया, NW में स्प्लिट होके आ गई, लिस्ट आ गई वर्ड्स की, काउंटर ले लिया, एक एक वर्ड को x में असाइन किया और x को उसके रिवर्स से कंपेयर कर लिया, अगर सेम निकले तो काउंटिंग इंक्रीज की, वरना नहीं इंक्रीज करेंगे. जब व्हेन यू विल कम आउट ऑफ दिस लूप, ऑल द वर्ड्स विल बी examined and you in C you are getting the number of palindromic words. इसको return किया, question said that you have to return and received in P and number of palindromic words is printed. Okay, so let us see the output. See, this is the content of document.txt file. यहाँ पे इतने words हैं. Then it said that you have 4 palindromic words. So let us see. This dad is palindromic, Malayalam is palindromic, then Nitin is palindromic, and then madam is palindromic. So 4 words are there which are palindromic words in this file. Hence 4 is the output. Next is, write a function named longest that reads the contents of a text file document.txt and prints the word having maximum length in the file. तो आपको इस फाइल में उस वर्ड को प्रिंट करना है जिसकी मैक्सिमम लेंथ है, ठीक है. सो रीड ऑल द डेटा, स्प्लिट इट, देन चेक द लेंथ ऑफ ईच वर्ड एंड विच एवर वर्ड हैज़ द मैक्सिमम लेंथ, उस वर्ड को हम प्रिंट कर देंगे और इसकी लेंथ को भी प्रिंट कर देंगे. तो हमने क्या किया, दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन ऑल्सो यू हैव डन अर्लियर बट नॉट यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइल हैंडलिंग. सो सी, document.txt is opened, all the content is read, splitted, then मैंने 2 वेरिएबल्स लिए हैं, L वर्ड टू स्टोर द लार्जेस्ट वर्ड and ML to store the length of the largest word. C is the counter variable. अब क्या हो रहा है, X में एक एक वर्ड आएगा, अगर X की लेंथ मैक्सिमम लेंथ इनिशियली 0 रखिए, अगर X की लेंथ मैक्सिमम लेंथ से ज़्यादा है तो फिर X हमारा लॉन्गर वर्ड है, देन दैट विल गो इन L वर्ड और उसकी लेंथ ML में जाएगी. नेक्स्ट टाइम जब हम दूसरा वर्ड रीड करेंगे तो उस अब की बार ML में 0 नहीं होगा, अब की बार ML में प्रीवियस वर्ड की लेंथ होगी, सो उससे कंपैरिजन होगा. सो दिस वे यू आर गोइंग टू कीप ऑन कंपेयरिंग और जिस भी वर्ड की लॉन्गेस्ट लेंथ मिलेगी वो आपका प्रिंट हो जाएगा. अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखिए कि मान लीजिए 2 वर्ड्स की मैक्सिमम लेंथ है और वो दोनों सेम लेंथ हैं, तो उस केस में आपका जो पहला वर्ड है वही प्रिंट होगा, ठीक है. सो लेट अस सी, सिंपली हमने किया ये है कि हमने इनिशियली मैक्सिमम लेंथ को 0 माना था, फिर मैंने एक वर्ड रीड किया, उस वर्ड की लेंथ अगर ML से ज़्यादा निकली तो मैंने उसकी लेंथ को ML मान लिया, फिर नेक्स्ट वर्ड रीड किया, अगर वो उससे भी बड़ा निकला तो ML में उसको शिफ्ट कर दिया, इस तरीके से काम किया है, ठीक है. सो सी, दिस वॉज द कंटेंट ऑफ द फाइल. ओके, एंड यू कैन सी दैट फर्स्ट ऑफ ऑल मी विल बी रेड, मी की लेंथ है 2, ठीक है. फिर एंड जब रीड होगा तो लेंथ हमारा ML में 3 जाएगा, क्यों, क्योंकि मी की लेंथ कम थी, ठीक है. फिर उसके बाद माई रीड हुआ तो ML में 3 ही रहेगा क्योंकि माई की लेंथ ऐड की लेंथ से ज़्यादा नहीं है. फिर डैड रीड होगा, फिर भी 3 ही रह जाएगा, ठीक है. फिर लिव की वजह से 4 आ जाएगा ML में, क्योंकि अभी तक ML में 3 था लेकिन लिव की लेंथ 4 है, ठीक है. फिर इन रीड होगा,
इसकी लेंथ 4 से कम है तो 4 ही रह जाएगी। और अभी तक हमारा मैक्सिमम लेंथ का वर्ड है लिव, लेकिन जैसे ही मलयालम रीड होगा, मलयालम की लेंथ बहुत ज़्यादा है, तो हमारे लॉन्गेस्ट वर्ड में जाएगा मलयालम और इसकी लेंथ उसमें चली जाएगी। उसके बाद आप जितने भी वर्ड्स रीड करेंगे एज पर द कंटेंट ऑफ दिस फाइल यू कैन सी कि कोई भी और वर्ड इससे ज़्यादा लेंथी नहीं है। सो दैट इज़ वाई यू गॉट द लॉन्गेस्ट वर्ड एज मलयालम और उसकी लेंथ है 9। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू do this program. Next is write a function named reverse word that reads the contents of a text file imagine.txt and creates another file modify.txt copying all its content but with each word being reversed and then display the contents of modify.txt. मतलब आपको imagine.txt का कंटेंट रीड करना है और एक दूसरी फाइल पे उसके कंटेंट को कॉपी करना है, लेकिन कॉपी करते समय हमें हर वर्ड को रिवर्स करके कॉपी करना है। ठीक है, तो इसके लिए देखिए क्या करेंगे, और जब हमारी modify.txt बन जाएगी देन वी हैव टू डिस्प्ले द कंटेंट्स ऑल्सो। सो imagine.txt को आप रीड मोड में ओपन करेंगे, modify.txt को आप राइट मोड में ओपन करेंगे। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, रीड एफ एस इज इक्वल टू एफ डॉट रीड लाइन्स, सारी लाइन्स रीड कर ली। ठीक है, उसके बाद एस में क्या आएगा, रीड लाइन्स फंक्शन यू नो, ये फाइल के पूरे कंटेंट को रीड कर लेगा और हर लाइन को वो जो हर लाइन के एंड में \n लगा के उसको एक लिस्ट में रख के रिटर्न करेगा। तो एस हमारी एक लिस्ट होगी जिसमें हमारे imagine.txt फाइल की हर एक लाइन एलिमेंट होगी उस लिस्ट की। ठीक है, अब हमने देखिए क्या किया, WL इज इक्वल टू एक्स डॉट स्प्लिट। अब x में क्या है, पहला लाइन है, s में हमारे पास लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स है, तो उस लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स की पहली स्ट्रिंग हमारी x में आई, हमने उस x को स्प्लिट कर लिया और फिर हमने उसके एक एक वर्ड को निकाला, रिवर्स किया और फाइल पे लिखवा दिया। अब क्या होगा, रिवर्स किया और साथ में स्पेस लगाई क्योंकि नेक्स्ट वर्ड फिर विदाउट स्पेस प्रिंट हो जाएगा, इसलिए स्पेस भी लगवा दी। तो हमने किया क्या, पहले सारी लाइंस रीड कर ली, एस में स्टोर कर ली लिस्ट के फॉर्म में, फिर उस एस की एक एक स्ट्रिंग निकाली और एक्स में स्टोर की। अब एक्स को हमने स्प्लिट कर दिया और फिर एक एक वर्ड एक्स का निकाला, मतलब WL का निकाला और उसको रिवर्स करके फाइल पे लिखवा दिया। और जैसे ही एक लाइन फिनिश होगी आप लाइन चेंज करवा दीजिए, क्योंकि फिर अगर आप ये नहीं कराएंगे तो सारी लाइंस के वर्ड्स रिवर्स होके एक ही लाइन पे आएंगे। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डू दिस प्रोग्राम। रिवर्स फंक्शन को कॉल किया है और दोनों फाइल्स को क्लोज कर दिया है। ठीक है, so I'll display the contents. I have not written the code for displaying the contents here. In order to keep it simple, I'll show you the contents of the file. See, new file created. This was printed at the end. New file created. तो इससे हमें इंडिकेट हो गया कि फाइल बन गई। Let us see. This was my imagine.txt फाइल। ये कंटेंट था। modified.txt में देखिए क्या हो रहा है, सारे वर्ड्स रिवर्स हो गए। दिस इज़ वॉट वी रिक्वायर्ड। तो हमने पहले सारी लाइन्स रीड की, फिर एक एक लाइन निकाल के उसके एक एक वर्ड को रिवर्स करके फाइल पे लिखवाया। इस तरीके से ये प्रोग्राम किया। ओके, देन द नेक्स्ट प्रोग्राम इज, there are 3 files, names.txt, marks.txt, percentage.txt containing name, marks and percentage of 5 students respectively। 5 स्टूडेंट्स का डिटेल है और आपको इन तीनों फाइल्स को रीड करके एक नेक्स्ट फाइल बनानी है result.txt नाम से, जिसमें आपको कंपाइल्ड रिजल्ट देना है इन दिस फॉर्मेट, नेम देन टैब स्पेस मार्क्स टैब स्पेस परसेंटेज। इस फॉर्मेट में आपको इन तीनों फाइल से डेटा रीड कर करके आपको इस फॉर्मेट में कंपाइल करना है इन द फाइल result.txt। तो ये जो 3 फाइल हैं हमारी, names.txt, marks.txt और percentage.txt, इनको हम रीड मोड में ओपन करेंगे और result.txt को राइट मोड में ओपन करेंगे और फिर एक नेम यहाँ से रीड करेंगे name.txt से, फिर एक मार्क्स रीड करेंगे
एक परसेंटेज रीड करेंगे और इन तीनों को कंपाइल करके रिजल्ट डॉट टीएक्सटी में लिखवा देंगे। फिर से ये काम 5 टाइम्स होगा, ठीक है। तो देखिए यही किया है, 3 फाइल्स को रीड मोड में ओपन किया और रिजल्ट डॉट टीएक्सटी को राइट मोड में। अब देखिए यहाँ पे क्या किया, इंपॉर्टेंट है, मैंने रीड लाइन किया एन डॉट, देखो n is the file handle of names.txt, m is the file handle of marks.txt, p is the file handle of percentage.txt and r is the file handle of result.txt। तो हमने नेम को रीड करने के लिए लिखा n डॉट रीड लाइन। तो n किससे जुड़ा है, नेम डॉट टीएक्सटी से जुड़ा है, तो नेम रीड करके आएगा। लेकिन मैंने r स्ट्रिप n क्यों किया है, देखिए क्या होगा कि आपके जो फाइल है ना, आई एम शोइंग द कंटेंट फर्स्ट। देखिए यहाँ पे ये मेरी तीनों फाइल है, नेम्स डॉट टीएक्सटी को देखिए, नेम है, उसके बाद लाइन चेंज है, अभिषेक है, फिर उसके बाद लाइन चेंज है। तो आप जब इससे रीड करेंगे कंटेंट तो लाइन चेंज कैरेक्टर भी रीड हो जाएगा, जिसकी वजह से हम जब कंपाइल करेंगे ना रिजल्ट, तो उस राहुल के साथ लाइन चेंज कैरेक्टर भी रहेगा, तो हमारी फॉर्मेटिंग इस हिसाब से नहीं हो पाएगी, नेम टैब स्पेस मार्क्स टैब स्पेस परसेंटेज। इसलिए मैंने आर स्ट्रिप किया है, क्योंकि आर स्ट्रिप फंक्शन राइट हैंड साइड से बैकस्लैश n को डिलीट कर देगा। हम बैकस्लैश n अपने हिसाब से करेंगे, जब हमारा एक रिकॉर्ड पूरा हो जाएगा हम तब बैकस्लैश n करेंगे, हमें बीच बीच में बैकस्लैश n नहीं करना है, ठीक है। तो इसलिए मैंने आर स्ट्रिप यूज़ किया है। आई थिंक यू मस्ट हैव अंडरस्टूड। आर स्ट्रिप से हमने जो हमने डेटा रीड किया फाइल से, उसका जो लाइन चेंज कैरेक्टर था उसको हटा दिया, जब हमें चाहिए होगा लाइन चेंज कैरेक्टर तब हम उसको लगाएंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, तीनों को रीड किया, मार्क्स रीड किए, परसेंटेज रीड किया, नेम मार्क्स और परसेंटेज, ठीक है, ये आ गए। और उसको मैंने क्या कर दिया, एक साथ क्लब अप करा दिया एस में और एस को लिखवा दिया, क्योंकि राइट फंक्शन हमारा एट अ टाइम 1 स्ट्रिंग लिखता है, इसलिए मुझे सारे कंटेंट को वो करना पड़ा, क्लब अप करना पड़ा। और इन कन्वर्ट नहीं किया, क्यों, देखो मार्क्स हमारे इंटीजर होगा, लेकिन जब हमने फाइल पे लिखवाया था टेक्स्ट फाइल में सब कुछ स्ट्रिंग होता है, तो जब आपने रीड किया तो वो जो मार्क्स और परसेंटेज है ना, वो भी स्ट्रिंग के फॉर्म में है, ठीक है। तो इसलिए हमने इसको यहाँ पे कन्वर्ट नहीं किया और सीधे क्लब अप करा के लिखवा दिया। एंड ऑल द फाइल्स वर क्लोज, रिजल्ट क्रिएटेड, लेट अस सी द आउटपुट, सी रिजल्ट क्रिएटेड इज प्रिंटेड, लेट अस सी द कंटेंट। देखिए ये 3 हमारी फाइल्स थी, राहुल ये नेम्स डॉट टीएक्सटी थी, ये मार्क्स डॉट टीएक्सटी, ये परसेंटेज डॉट टीएक्सटी, और एक नेम रीड हुआ राहुल, मार्क्स रीड हुए 67, परसेंटेज रीड हुआ 68.9, यहाँ क्लब अप होके तब लाइन चेंज हुई। अगर हम पहले लाइन चेंज के साथ ही रीड करते तो फिर राहुल 67 68.9 अलग अलग लाइन पे आते। फिर हमने नेक्स्ट नेम रीड किया, मार्क्स, परसेंटेज। सो दिस वे यू गॉट ऑल द 5 रिकॉर्ड्स। So with this I finish up the programs related to reading the contents of a file word by word and then processing in whatever way you want. In the next video I'll be discussing programs based on reading the contents of a file line by line. I told you that there are 3 ways of processing the file: character by character, word by word, line by line. So in the next video I'll be discussing that. I hope you must have understood these programs. If you have any confusion, you can write it in the comment section. Thank you so much.